ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮॉडल ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਟਰਮ 1 ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਚ ਨੰਬਰਿੰਗ 41 ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -7/19 ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੇ? 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਕੀ ਜੋੜੋਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ? ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -7/19 ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7/19, ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇਖੋ, -4/5 ਗੁਣਾ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਦੇਖੋ -4/5 ਇੰਟੂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ A ਇੰਟੂ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਇੰਟੂ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? B ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? 1, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5/6 ਅਤੇ 7/6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5/6 ਅਤੇ 7/6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5/6 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 7/6 ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 50/60, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 70/60। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ? 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 100 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੰਤ। ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 540, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਗਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਆ, ਜੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 540। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਪੰਜਭੁਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਪੈਂਟਾਗਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਪੈਂਟਾਗਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 45 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 45, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਮੀਨਸ 360 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 45। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, 5 ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 72। 9 ਤੇ 72 ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 8। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਇਤ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ ਮੀਨਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਆਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਵਨ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਇਤ, ਦਿਸ ਵਨ ਸਕੁਅਰ ਵਰਗ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡਸ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90। ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਈਚ ਐਂਗਲ 90,
पर आपां बेटा देखो रैक्टेंगल नूं स्केयर कह सकते हैं नहीं, आपां स्केयर नूं रैक्टेंगल तां कह सकते हैं पर रैक्टेंगल नूं स्केयर नहीं कह सकते। नैक्सट देखो सारियां पतंग समांतर चतुर्भुज हुंदियां हन। पतंग मीनस काइट, ठीक है, दिस वन इज काइट, दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज मीनस पैरेललोग्राम, ठीक है, दी साइड्स आर इक्वल, दी साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने। काइट बेटा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, लागमियां, ठीक है। हुण पतंग नूं आपां समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं नहीं, रॉन्ग। नैक्सट देखो सारे वर्ग समचतुर्भुज अते आयत भी हुंदे हन, ठीक है। आपां देखो वर्ग नूं स्केयर नूं समचतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज कह सकते हैं वर्ग नूं आपां देखो यस, क्योंकि समचतुर्भुज प्रॉपर्टी है बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी हैगी आ आल साइड्स आर इक्वल, वर्ग च भी सारे साइड्स की होंदियां ने इक्वल, ठीक है। इनू आयत कह सकते हैं यस, क्योंकि ओपोजिट साइड ये इक्वल होंदी ही ने, रैक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये सैटिस्फाई करके, ठीक है। आप बेटा वर्ग नूं समचतुर्भुज ते आयत दोनों कह सकते हैं। सारे आयत चतुर्भुज नहीं होंदे, गलत, क्योंकि बेटा रैक्टेंगल आ सब तो पहला वो की है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग। तो अपना केड़ा आंसर सही आ गया, सी ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो जेकर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 होवे तो उसके संख्या के वर्ग का इकाई का अंक की होवेगा, ठीक है। कोई नंबर है बेटा वह यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, कितना अपने को 9, तो वर्ग के इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ इट्स स्केयर, ठीक है, स्केयर दा की होएगा। जिमें 9 आ, देखो बेटा कोई भी नंबर आ जिहदे पिछे 9 आ, ठीक है, वह स्केयर करोगे, जिमें 9 का स्केयर करिए आपां कितना आंदा अपने कोल 81, तो यूनिट प्लेस डिजिट की होंदा हमेशा अपने कोल 1। क्लीयर हो गया बेटा। अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। यदि तुसीं 19 नूं 19 नाल कर सकते हो, ठीक है, पिछे 9 नूं 9 ना करोगे हमेशा की आऊगा 1, यूनिट प्लेस डिजिट। नैक्सट देखो हेठ दिते जो केड़ी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जिहदे फैक्टर बनते हैं बेटा पेयर बनते हैं, ठीक है, फैक्टर ने वो इन पेयर च एग्जिस्ट करते हैं। ये केड़ी ऑप्शन आ 529, क्योंकि 529 है बेटा किहदा वर्ग होएगा ये, देखो चलो आप 23 नूं 23 ना करके देखिए, 3 नूं 3 ना किता 9, 3 नूं 2 ना किता 6, 3 नूं 2 ना किता बेटा जी 6, 2 नूं 2 ना किता 4, ये बन गया अपने को 9 2 5। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ फैक्टर बन गए बेटा अपने को 23 × 23। तुसीं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज गुणनखंड नाल भी चैक कर सकते हो, ठीक है। अपने को आंसर क्या आ गया बेटा जी डी ऑप्शन। देखो जो प्राइम फैक्टर करोगे 529 ये कितने जाएगा 23 तो डिवाइड करके कितना आ गया 23, 23 1 जा 23, ये पेयर बन गई। इदी तुसीं बेटा ये चैक कर सकते हो, ये पेयर तुहाडे कोल कंप्लीट नहीं बननगे, ठीक है। नैक्सट देखो 12 के वर्ग और 13 के वर्ग दे विचकार कितनियां प्राकृतिक संख्यावां हन, ठीक है। स्केयर ऑफ 12 एंड 13 दे विचकार बेटा इन बिटवीन किन्ने नैचुरल नंबर ने आपां ने फाइंड आउट करने ने। देखो बेटा ये मैथड की आ 12 का स्केयर कर लो, 12 × 12 कितना आ गया 144, यदि 13 का स्केयर कर लो कितना बन गया 13 × 13 169। इन्हां दोनों का की फाइंड आउट करांगे, पहला आपां डिफरेंस अंतर कितना आएगा अपने को 169 जो माइनस कर दो बेटा जी 144, कितना आ गया अपने को 25। तो इन्हां दोनों के वर्गों के विचकार कितनियां संख्यावां होणगियां, जिहड़ा डिफरेंस हुंदा बेटा उहदे विच आपां की करदे आ 1 माइनस कितना आ गया अपने को 24, ठीक है। कितनी संख्यावां आ गई अपने को 24। अपनी ऑप्शन केड़ी आ गई बेटा जी बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 4225 का वर्गमूल दसो, वर्गमूल मीनस स्क्वायर रूट, ठीक है। अपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, देखो फैक्टर बना लो 4225 दे
किते जाएगा बेटा जी 5 ते डिवाइड करो, कितना आ गया 845, इनू 5 नाल डिवाइड करो। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड नाल कर रही हूँ बेटा जी अभाज गुणनखंड विधि। कितना आ गया अपने को 169, ये किते जाएगा बेटा जी 13 ते, कितना आ गया 13 किते जाएगा 13 ते। हुण देखो अपने को प्राइम फैक्टर बन गए 5 × 5 × 13 × 13। क्लीयर हो गया। हुण आपां इहदा की फाइंड आउट करना, स्क्वेयर रूट वर्गमूल। की सिंबल हुंदा अपने को दिस वन 4 2 2 5। पेयर पेयर च बेटा एक कढ लो 5, ये पेयर च कढ़िया आपां ने 13 × 5 कितना बन गया अपने को 65। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया बेटा जी अपने को 65, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, नैक्सट है अपने को 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 भी किहदे बराबर होगा। बेटा ये देखो लगातार की ने अपने को टांग संख्यावां दा जोड़। ठीक है, सम ऑफ कंजक्टिव ऑड नंबर्स, ਇਹਦਾ फार्मूला हुंदा बेटा अपने कोल जे मान लो आप देखो 2 नंबर्स ऐड करते हैं 1 + 3 तो किहदे बराबर आऊगा, दोनों ने जोड़ दो 2 नंबर्स बन गए, 2 का स्क्वेयर कितना बन गया 4, मीनस ਇਹਦਾ जोड़ कितना आऊगा अपने कोल 4। इदा जे आप लगातार बेटा 3 टांग संख्यावां ले लिए ऑड नंबर्स ले लिए, कितनी आ गया 1 2 3, ਇਹਦਾ सम किहदे बराबर आऊगा 3 का स्क्वेयर कितना बन गया अपने को 9। इदा बेटा देखो इस संख्यावां काउंट करो किनिया ने 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्यावां हो गई। तो यदा जोड़ कि बराबर हो बेटा जी 8 का स्क्वेयर, 8 × 8 कितना बन गया 64। ठीक है, किहड़ी ऑप्शन आ गई अपने को हुण डी ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, हेल के पैटर्न देखते हुए खाली थां भरो। बेटा पैटर्न आप आइडेंटिफाई करना किदां दा पैटर्न है ये, देखो ये लिखा ना 2 का क्यूब - 1 का क्यूब किहदे बराबर अपने को 1 + 2 × 3 2 × 1 × 3, अगे है 3 का क्यूब 2 का क्यूब 1 + 3 × 2 × 3। देखो बेटा ये सारे पैटर्न एक चीज़ क्लीयर आ, 1 सारे ऐड हो रहे हैं, उस तो दोनों नंबर्स की की है बेटा जी मल्टीप्लाइकेशन इंटू सब नूं फिर 3 नाल मल्टीप्लाई किया होया। इदां दिस वन देखो 1 + इन्हां दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाइकेशन 3 × 2 नाल किनूं मल्टीप्लाई किया होया सारिਆਂ नूं 3 दे नाल। इदां नैक्सट देखो 1 + 4 × 3, ठीक है, इंटू 3। हुण आपां किहदा फाइंड आउट करना 12 का क्यूब - 11 का क्यूब, ये कितना बनूगा 1 + 12 × 11, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा अपने कोल 3। हुण देखो किहड़ी ऑप्शन बनी है अपने कोल 1 + 12 × 11 × 3, किहड़ी ऑप्शन है बेटा जी ये सी ऑप्शन। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो बेटा 8000 का घन मूल दसो। ठीक है, घन मूल फाइंड आउट करना बेटा आपने। घन मूल इंग्लिश की बोलते आप क्यूब रूट। ठीक है, इन्हें इंग्लिश की बोलते बेटा जी आप क्यूब रूट। हुण देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड ना करूँगी बेटा मैं अभाज गुणनखंड विधि नाल, तो क्यूब रूट लिए आप किहदे पेयर बनाने 3 3 दे। ठीक है, 3 3 का बनाने बेटा आप स्क्वेयर रूट वास्ते आप 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। चलो पहले मैं 2 से डिवाइड करती हाँ, कितना आ गया मेरे को 4000, फिर 2 से डिवाइड किया बेटा ईवन नंबर्स ने, कितना आ गया 2000, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1000, फिर 2 से डिवाइड करांगे बेटा जी कितना आ गया अपने को 500, ये फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया अपने को 250। हुण बेटा इधर आ नहीं रहा, मैं साइड से कर दी हाँ। उस तो बाद देखो 250 किन्ने ते जाएगा बेटा जी 2 ते, कितना आ गया अपने को 125, 125 किते जाएगा 5 ते, कितना आ गया 25, ये किते जाएगा बेटा जी 5 ते, कितना आ गया अपने को 5 किते जाएगा 5 ते।
ਹੁਣ देखो बेटा आप ये बनाने ने तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना। अपने को देखो क्यूब रूट आ गया 8000 का, इतने की पावे आप 3 3 3 का पेयर दिस 1 2 तो एक 2 बेटा इधर सी 3 का पेयर ये बन गया 2 आ गया इंटू 2 इंटू 3 का पेयर इंटू 5 2 नू 2 ना किया 4 4 नू 5 ना किया कि आ गया अपने को 20। ਇਹਦਾ मतलब 8000 का क्यूब रूट घन मूल कि आ गया अपने को बेटा जी 20। ठीक है, देखो कि ऑप्शन अपने को सी ऑप्शन। नैक्सट देखो जेकर देखो बेटा 53240 दे अपने को प्राइम फैक्टर बने हुए हैं। ठीक है, भाज गुणनखंड बने हुए हैं। अपन दसना इन्हूं पूर्ण कण बनाना, परफेक्ट क्यूब बनाना अपने। ठीक है, इंग्लिश की बोलते आप इनू परफेक्ट क्यूब बनाने लिए बेटा आपां इन किहड़ी संख्या नाल गुणा करनी पवेगी। आपां हुणे करके हटिया बेटा 3 3 के पेयर बनने चाहिए ने। दिस 1 3 का पेयर आ, ये भी 3 का पेयर है बेटा। जिहड़ा 5 आ की आ सिंगल टाइम, आपां 2 5 होर चाहिए ने 5 इंटू 5 फिर की बन जाएगा 3 का पेयर। क्लीयर हो गया, मीनस आपां कितना नंबर पाना पऊगा 5 इंटू 5 25। अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो हे लिखे में केड़ा कथन सही है। किसी भी एक जिस संख्या का घन टांक हुंदा है जिसका घन टांक होएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल जिमें 2 का क्यूब कर लिए आप, क्यूब ऑफ एनी ईवन नंबर इज ए ऑड नंबर। चेक करो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया अपने को 8 8 की अपने को ईवन नंबर, दिस 1 रॉन्ग। ठीक है, नैक्सट किसी भी टांक संख्या का घन टांक हुंदा है जिमें 1 का क्यूब सॉल्व कर लिए आप, 1 इज ऑड नंबर 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। यदि बेटा 3 का क्यूब सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 27 27 की अपने को ऑड नंबर। ठीक है, इट मीन दिस इज ट्रू। नैक्सट है एक पूर्ण संख्या 2 सिफर से खत्म होंदा है। पूर्ण घन आ जिहड़ा परफेक्ट क्यूब आ, दिस इज रॉन्ग बेटा क्योंकि पूर्ण घन आ परफेक्ट क्यूब आ बेटा वो 3 जीरोस से एंड होंदा है। 3 ते होगा 3 का टेबल या 6 0 ते होएगा पिछे या 9 0 ते। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ते जाओ उन्नियां उहदे पिछे की होणगियां 0। ये गलत है बेटा। नैक्सट है एक अंक वाली संख्या का घन हमेशा एक अंक वाली संख्या होंदा है। नो बेटा दिस इज रॉन्ग। जिमें 3 का क्यूब ले लिए आप कितना आ गया अपने को 27। 3 की अपने को एक अंक वाली संख्या यूनिट। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर, पर जब क्यूब फाइंड आउट किया तो कितना आ गया अपने को 2 डिजिट नंबर। इट मीन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अपनी ऑप्शन केड़ी आ गई बेटा जी बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 50 पैसे का 5 रुपये नाल की अनुपात होवेगा। रेशो फाइंड आउट करनी बेटा आपने 50 पैसे की 5 रुपीज़ के नाल। देखो ये बन गया 50 पैसे डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़। दोनों के बेटा यूनिट सेम होने चाहिए ने। ये बन गया देखो 50 पैसे पैदी रख लेने 1 रुपीज़ के विच किन्ने पैसे होंगे ने 100। ये बन जाओ 5 इंटू 100 पैसे। देखो दिस 1 कैंसल आउट हो गए, ये भी कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया 1/10। अपना आंसर कितना आ गया 1:10। केड़ी ऑप्शन आ गई बेटा जी बी ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट देखो 840 रुपये अंकित मुल वाली एक वस्तु 714 रुपये विच बेची जाती है तो कटौती पता करो। ठीक है बेटा, देखो जिहड़ा अपने को अंकित मुल मतलब कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितनी अपने को MP 840 बेची जाती है मतलब सैलिंग प्राइस। ठीक है, सोल्ड किन्ने दे बेटा अपने को 714। कटौती मीनस डिस्काउंट, डिस्काउंट अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्काउंट का फार्मूला की होंगे बेटा अपने को मार्केट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। ठीक है, अंकित मुल माइनस बेच मुल। मार्केट प्राइस कितनी है 840, सैलिंग प्राइस कितनी है 740 तो माइनस करके कितना आ गया बेटा जी अपने को 126। क्लियर हो गया बेटा, कितना डिस्काउंट हो गया अपने को कटौती कितनी होगी
126। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन बेटा आप नैक्सट वीडियो विच करांगे। थैंक्स बेटा जी फॉर वाचिंग दिस वीडियो।